हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1। चैप्टर नेम इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि चेंजेस कितने टाइप्स के होते हैं। चेंजेस हैं हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। सो चेंजेस 2 टाइप के होते हैं, एक फिजिकल चेंजेस, एक केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? फिजिकल चेंजेस इज नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। फिजिकल चेंजेस कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं करते हैं एंड इट इज ए रिवर्सिबल is known as physical changes. For an example, broken glass, ice, salt dissolved in water and some other. Chemical changes, new substance formed and it is irreversible, is known as chemical changes. For an example, burning of paper, cooking, rusting of iron and some other. Okay? इसके बाद हम NCERT की एक्टिविटी नंबर फर्स्ट करेंगे। So activity number first of all, take a magnesium ribbon, it hold by a tongs and burn it using a split lamp or burner. It change into white powder. This powder is called a magnesium oxide. It formed due to the reaction between magnesium and oxygen. Oxygen is present in air. Okay, follow in this diagram. First activity is complete. So next activity number second. In activity number second, take a few zinc granules in a conical flask or test tube. Add dilute hydrochloric acid or sulfuric acid. Caution: handle the acid with care. In this conical flask, some changes. The following observation help to us determine whether a chemical reaction has taken place. First of all, change in states or change in color, evolution of gas and change in temperature. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल इक्वेशन। इन एक्टिविटी नंबर फर्स्ट, I saw when a magnesium ribbon is burned in oxygen, it get converted into magnesium oxide. So the simple way to do this is to write in the form of a word equation. In word equation, write it magnesium plus oxygen given magnesium oxide. In this reaction, the reactant is a magnesium plus oxygen and product is magnesium oxide. New substance is formed is called a product and in this reaction is called a reactant. Definition of reactant: the substance that undergo chemical reaction in the reaction that are called reactant. Secondly, product: the new substance is formed during the reaction is known as product. Okay. The reactant are written on the left hand side with a plus sign between them. Similarly, product are written on the right hand side with a plus sign between them. Write a chemical equation. We use chemical formulas instead for word. The chemical equation represent a chemical reaction. In chemical name, magnesium is Mg, oxygen is O2 and magnesium oxide is MgO. So Mg plus O2 is a reactant and MgO is a product. Okay. So next topic है हमारा balanced chemical equation. In balanced chemical equation,
the total mass of the elements present in the product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reactant. In other words, the numbers of atoms of each element remain the same. For an example, in word equation, activity number second, zinc plus sulfuric acid given zinc sulfate plus hydrogen. In chemical equation, write it, zinc is Zn plus sulfuric acid is H2SO4 given zinc sulfate is ZnSO4 and hydrogen is H2. So check the number of atoms in both sides are same or not. Okay. Draw a table for checking a numbers of atoms in reactant and product and are both sides is same or not. So element is zinc, hydrogen, sulfur or oxygen is present in the reaction. Number of atom in reactant is, so check it, Zn in reactant is 1 and Zn in product in 1. Both sides is same Zn, and hydrogen is present atom in reactant is 2 and number of atom hydrogen in product is 2. Samely, sulfur and oxygen are both same in both sides. So this is a balanced chemical equation. Okay. Some basic knowledge for the chemical equation. SO4 is S is 1 and O is 4. Let's suppose 4SO4. So S is 4 and O is 16 because 4 multiplied by S is S4 and 4 multiplied O4 is 4 multiplied 4 60. Okay. Some example for balanced chemical equation. Example number 1. So chemical equation, so Fe means iron plus H2O given a Fe3O4 plus H2. So write it, number of atom in reactant and number of atom in product. In this chemical equation, reactant and product are not same. Fe in reactant is 1 and product in third. In this reaction, reactant and product is not same. Fe in reactant is 1 and Fe in product in 3. And oxygen is 1 in reactant and oxygen 4 in product. Fe in reactant is 1. So balance the equation. Let's Fe is 3 times of Fe. So Fe in 3 Fe needs 4. So 1 multiply 3. तो जो हमारा Fe है वो रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में 3 है. ठीक है, तो इसमें 1 है उसमें 3 है, तो इसमें कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है. तो 1 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे कि 3 आ जाए इधर भी, उधर तो 3 है ही, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स होगा. ठीक है, ऐसे ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में कितने की कमी है? 3 की कमी है. ओके, तो 1 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बन जा 4. ओके, ड्रॉ ए अदर टेबल फॉर दिस. ड्रॉ ए नेक्स्ट टेबल फॉर ऑक्सीजन. O is need
जो ऑक्सीजन है हमारा वो रिएक्टेंट में हमें कितने की ज़रूरत है, 3 की। तो ऑक्सीजन में हमने 4 का मल्टीप्लाई करा तो 4 मल्टीप्लाई 1 इस होगा 4। तो जब 4 में O में मल्टीप्लाई करेंगे हम तो जो हमारा रिएक्टेंट में लिखा है वो H2O है। H2O मतलब वाटर का हो केमिकल फॉर्मूला। तो हमें O में भी S में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 टाइम। तो 2 × 4 होगा 8 हमारा। अब जो है नेक्स्ट हमें हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा किसमें, प्रोडक्ट में। ठीक है, हाइड्रोजन में हमें हाइड्रोजन की जो H है, H में हमें प्रोडक्ट में हमें कितने की ज़रूरत है, 6 H की ज़रूरत है। ठीक है, तो 6 H की ज़रूरत है, टोटल 8 होने चाहिए हमारे पास। तो 2 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितने हो जाएंगे, 8। 2 4 जा 8। ओके, सो जो हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन थी वो हमारी निकल के आ गई। क्या निकली, 3Fe + 4H2O गिवन Fe3O4 + 4H2O। ओके, सो सेकंड एग्जांपल अब हम लेते हैं। तो जो हमारा सेकंड एग्जांपल है HNO3 + Ca ब्रैकेट OH ब्रैकेट क्लोज 2 गिवन Ca ब्रैकेट NO3 ब्रैकेट क्लोज 2 + H2O। तो जो हमारा रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन है वो 3 है। कैसे, HNO3 में हमारा एक हाइड्रोजन है और ब्रैकेट में OH में जो बाहर 2 लगा है तो हमारे 2 हाइड्रोजन है, 1 और 2 3। ठीक है, ऐसे ही नाइट्रोजन हमारा 1 है और ऑक्सीजन हमारा 5 है। HNO3 में 3 ऑक्सीजन है और OH में 2 ऑक्सीजन है। Ca हमारा 1 है। ऐसे ही प्रोडक्ट में हमारा जो H है वो 2 है H2O में, और N है वो हमारा ब्रैकेट में NO3 में N हमारा 2 है, क्योंकि O पे 3 लगाए और ब्रैकेट के बाहर 2 लगाए, तो जो बाहर 2 लगाए वो पूरे पे मल्टीप्लाई करेगा तो N हमारा हो जाएगा 2। ऐसे ऑक्सीजन हमारा 6 है, 2 3 जा 6, NO3 में 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। और Ca है जो हमारा वो है 1। ठीक है, अब इसे बैलेंस करते हैं। तो जो हमारा हाइड्रोजन है रिएक्टेंट में, जो H है हमारा रिएक्टेंट में वो 3 है और प्रोडक्ट में 2 है, तो 1 की कमी है। अब इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें प्रोडक्ट में कि 3 आ जाए, तो ऐसा तो किसी का मल्टीप्लाई हो नहीं सकता। तो क्या करेंगे, जो रिएक्टेंट है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो 2 3 जा 6। ऐसे इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में प्रोडक्ट में। ठीक है, जो रिएक्टेंट में H है हमारा वो एक साइड एक 1 है और एक 2 है। ठीक है, और प्रोडक्ट में हमारा जो H है वो 2 है टोटल। तो जो 2 है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही हम 1 में मल्टीप्लाई 2 का करेंगे तो वो 2 हो जाएंगे और 2 + 2 = 4। ओके, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जो केमिकल रिएक्शन होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन 5 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं देखते हैं। जो हमारी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो 5 होती हैं। एक है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी डिकम्पोजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अब इन्हें हम डीपली पढ़ेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, इन पांचों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम कुछ देखेंगे। राइट सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट इन रिएक्शन, गैस is G, liquid is L, aqueous is AQ, solid is S. At arrows, temperature is present, sunlight or chlorophyll, pressure is ATM. So firstly हम पढ़ेंगे combination reaction. A reaction in which a single product is formed from 2 or more reactant is known as combination reaction. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को मिला रिएक्शन कराकर हमें
एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, उसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जो एग्जांपल नंबर 1 में हमारी केमिकल रिएक्शन लिखी है वो है CaO प्लस H2O गिवन Ca ब्रैकेट OH ब्रैकेट क्लोज टू प्लस हीट। तो CaO हमारा किस स्टेट में, सॉलिड में, H2O लिक्विड में, और CaOH किस में है, एक्वस में। ठीक है, और इसके साथ रिलीज क्या हो रही है, हीट। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, जो हमारे रिएक्टेंट थे वो कितने थे, 2 रिएक्टेंट थे। रिएक्टेंट में हमारे कितने सब्सटेंस थे, 2 थे। जब इनकी रिएक्शन कराई हमने तो हमें प्रोडक्ट में कितने मिले, 1 सब्सटेंस मिला। ठीक है, तो अब ये रिएक्शन हुई कैसे, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट फास्टली विद वाटर। जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो रिएक्ट करती है वाटर से फास्टली। ठीक है, जो प्रोड्यूस ए सिल्क डाइम। इसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जब ये वाटर से रिएक्ट करती है तो ये क्या रिलीज करती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाती है और लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज करती है। ठीक है, इसके आगे हम कुछ और एग्जांपल देखेंगे। सेकंड एग्जांपल है हमारा बर्निंग ऑफ कोयल। कोयल को तो आप जानते ही होंगे। तो कोयल हमारा किससे बनता है, कार्बन से। तो C+O2 की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, CO2। ठीक है, O2 है जो हमारी ऑक्सीजन है वो एयर में प्रेजेंट होती है। ऐसे ही थर्ड वाला एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। H2 और O2 को मिलाकर हम क्या बना सकते हैं, वाटर को। ठीक है, ये एक हमारी रिएक्शन हो गई 2H2 प्लस O2 2H2O। ठीक है, H2 में हमने 2 पहले क्यों लगाया, क्योंकि बैलेंस, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने कुछ ऐसी रिएक्शन देखी जो रिएक्शन होते में हमारी हीट रिलीज कर रही थी। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो इन दिस रिएक्शन which heat is released along with the formation of product are called exothermic reaction। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के हम कुछ एग्जांपल देखेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, जो इसमें हमारा फर्स्ट एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में वो है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस। अगर हम किसी भी नेचुरल गैस को जलाते हैं या बर्न करते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल CH4 प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ O2 ही गिवन CO2 प्लस H2O। एक तो ये CO2 रिलीज करती है और H2O। जब इसकी CH4 की इन द प्रेजेंस ऑफ O2 की प्रेजेंस में जब इसकी रिएक्शन कराते हैं, बर्न करते हैं, तो ये हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज करती है, मतलब हीट रिलीज करती है। ठीक है, जब प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होता है उस समय ये क्या करती है, हीट रिलीज करती है। इसके बाद है जो एग्जांपल नंबर सेकंड, जो एग्जांपल नंबर सेकंड है वो है हमारा रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं। ठीक है, और जो फूड हम गेन करते हैं, लेते हैं, उससे हम क्या लेते हैं, एनर्जी। रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, ग्लूकोज और O2 को हम लेते हैं और जो हम प्रोड्यूस जो बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ठीक है, अब इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, do you know that is in respiration process the decomposition of vegetable matter into the compost is also example of an exothermic reaction। नेक्स्ट है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, सेकंड है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास एक सिंगल रिएक्टेंट होता है, वो ब्रेक डाउन होता है और हमें गिवन में 2 या 2 से ज़्यादा
प्रोडक्ट देता है। इसी को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल 1 में जैसे हमने लिया फेरस सल्फेट लिया, उसे जब हमने हीट करा तो हमें मिला फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो जो हमारा फेरिक सल्फेट क्रिस्टल था वो ब्रेक डाउन हो गया किस किस में, फेरिक ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ठीक है, इसके और भी एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल है CaCO3। CaCO3 मतलब लाइमस्टोन को जब हम हीट करते हैं तो हमें मिलता है CaO और प्लस CO2। ठीक है, अब हमने ये 2 एग्जांपल लिए, इसमें हमें क्या था, हीट देनी पड़ रही थी रिएक्शन को कराने के लिए। अगर हमें किसी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अगर हमें हीट देनी पड़ेगी तो हम उस रिएक्शन को बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जिस रिएक्शन में हीट देनी पड़े उस रिएक्शन को बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन is carried out by heating, it is called a thermal decomposition reaction. Okay, इसके बाद हम कुछ और एग्जांपल देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। एग्जांपल नंबर 3 है हमारा 2Pb ब्रैकेट NO3 ब्रैकेट क्लोज 2 is heated given a 2PbO plus 4NO2 plus O2। जो PbNO3 है वो लीड नाइट्रेट है, उसे हम जब हीट करते हैं तो हमें लीड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 4 है, जो 4th एग्जांपल है वो है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। जब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, किसकी मदद से करते हैं, एक 6 वोल्ट की बैटरी लेते हैं और उसे ग्रेफाइट टू ग्रेफाइट रोड में जोड़ते हैं, उसके वायर को, एनोड और कैथोड को, और जो ग्रेफाइट रोड होती है उन्हें 2 टेस्ट ट्यूब में रखते हैं। और जब बैटरी का स्विच ऑन करते हैं तो जो एनोड साइड होती है उसमें ऑक्सीजन के गैस के पार्टिकल रिलीज होना शुरू हो जाते हैं और कैथोड साइड में हाइड्रोजन के गैस के पार्टिकल आना शुरू हो जाते हैं, जो आपको फिगर में शो कराया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारा सिल्वर क्लोराइड का। जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो क्या होता है, Ag हमें, जो सिल्वर होता है वो हमें अलग मिलता है और क्लोराइड होता है वो हमें अलग मिलता है। सिल्वर हमें सॉलिड की फॉर्म में मिलता है, क्लोराइड हमें गैस की फॉर्म में मिलता है। ठीक है, जैसे हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 में सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में जब रखते हैं तो सिल्वर हमारा अलग हो जाता है और क्लोराइड हमें गैस की फॉर्म में मिलता है। ठीक है, ऐसे ही 6 वाला सिल्वर ब्रोमाइड को भी हम जब सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो Ag हमें, जो सिल्वर होता है वो सॉलिड की फॉर्म में मिलता है और जो ब्रोमाइड होता है वो गैस फॉर्म में बन जाता है। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।